For those parents and students who do not know me yet, let me introduce myself. I am Nagma Nazir, and it's profound honor and privilege and responsibility to stand here before today as your trustee for Dr. A.R. Undre English High School, Junior College and Senior 2. My role is here goes far day by day operations. I'm here to ensure that our institution operates a beacon of progress and unwavering disciplines and unlimited opportunities to every single student. And to our parents, thank you so much to entrusting us for your student future. Beautiful, ambitious young women of Degree College, you represent high aspiration to these institutions. You are stepping into the world where you need strength, finance literacy and specialized skills. So look at this campus as your training ground, and I'm here to support your ambitions and expect from all of you to step into the role of power and lead an example. And to our young and beautiful brides, future stars, you are actually heart of these institutions, and I personally have very deeply expectation for you, because we are upholding the high strict standard where English communication is mandatory in our campus. So we believe that we need your extraordinary potentials so you can respect your environment and education. That means you are respecting yourself. So together we all are a one unified community. So we are moving forward and leading a vision of excellences. And I'm deeply honored to serve these institutions and uphold and guide this progress. So, and working to all of you. So thank you so much once again for joining us today. And we are, inshallah, we are having incredible, inspired session today. And before I start PTA, I just want to clear you that after the PTA meeting, I'm going to give you some life coach lessons. This is not only for the student, but parents also. So I believe that I must be your specialist to all of you, and you better fathom it. So let's start with the PTA. What is PTA? Parents Teacher Association. देखा जाए तो PTA में होता है पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल का रोल. अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने जब सबसे पहले कुरान उतारा तो सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. इसका सबसे पहले लफ्ज़ है इक़रा, पढ़ो. यानी अल्लाह ताला ने भी इल्म को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है, क्योंकि इल्म ही ऐसी चीज़ है, एजुकेशन, तालीम, जो हमको जहालत से इंसानियत के रास्ते पे लाती है, अंधेरे से उजाले की तरफ लाती है और सही और गलत में पहचान कराती है. वो इल्म ही है, तालीम ही है, एजुकेशन ही है. डॉक्टर A.R. उंड्रे सर, अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन, जिन्होंने इसकी बुनियाद 45 साल पहले की थी. और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर ओरली पंचतन ये अगर शान है, अगर पहचानी जाए तो वो डॉक्टर A.R. उंड्रे इंग्लिश हाई स्कूल है. देखो, मुझे ज्वाइन हुए कुछ ही महीने गुजरे हैं. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे सर्वे किया अपने स्कूल के लिए कि किस चीज़ की कमी है, क्या हम ला सकते हैं. ये सब मैंने एक टीम बनाई जिसमें ज़मीर सर जो मेरे हस्बैंड हैं, आरिफ सर है, मुबिन सर है, और ये हमारी टीचर्स की टीम है. हमने सबसे पहले जो कदम उठाया है वो टीचर की ग्रूमिंग की है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उंड्रे स्कूल की बोर्डली ब्रांच की टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है. अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे पास टोटल 13 ब्रांच हो गए हैं.
माशाल्लाह से। और जितने टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी डे बाय डे, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बीइंग एक्सीलेंट नाउ, एक्सीलेंट माशाल्लाह। उसके बाद सबसे पहले जो हमने काम किया कि सिलेबस को डिवाइड किया, वीकली सिलेबस डिवाइड किया है हमने। इससे क्या होता है पता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम या टर्म एग्जाम के वक्त है ना, कुछ पोर्शन बाकी रहता था, जिसकी वजह से पेरेंट्स कंप्लेन करते थे कि अभी तक पोर्शन पूरा नहीं हुआ और आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम रख रहे हैं। तो उसको खास नजर रखते हुए हमने उनको वीकली प्लान डिवाइड किया है, जिसकी वजह से आप कोई भी टीचर से कभी भी अपने बच्चे का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि वीकली सिलेबस कितना मैडम या सर दिया हुआ है। ये आप कोई भी टीचर से कभी भी ले सकते हैं। अभी इसके अलावा एक सवाल आता है कि मुझे कुछ पेरेंट्स ने ये सवाल किया और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। उन्होंने सवाल किया कि आपने हफ्ते में मंडे टू थर्सडे सिर्फ स्कूल रखी हुई है, फ्राइडे हॉलीडे है, सैटरडे को आपने एक्टिविटीज रखी हुई है और संडे, दैट मीन्स कि आप सिर्फ 4 दिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 3 दिन हॉलीडे। ये सवाल उनका था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सवाल। तो उसका जवाब ये है कि देखो क्या होता है पता है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है और हमेशा मैं कहती हूँ कि बच्चों में अलग अलग तरह की सिफत होती है, हर बच्चे का अपना स्टेमिना होता है। जैसे आरिफ सर ने अभी बताया कि मंडे टू थर्सडे हमारी सिर्फ लर्निंग, सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। उसमें से हमने पीटी के पीरियड, वेज पीरियड्स, ड्राइंग है, जीके है और जितने भी वेज पीरियड्स है, कंप्यूटर के कुछ पीरियड्स हैं, वो हमने निकाल के सैटरडे में डाला हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक पीरियड, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए कि इंग्लिश का पीरियड है या फिजिक्स का पीरियड है, उसके बाद पीटी का पीरियड रखा जाता है और पीरियड होता है सिर्फ 35 या 30 मिनट का। आप जरा गौर कीजिए कि 35 और 30 मिनट में बच्चे जब खेलने जाते हैं ना, उनकी एनर्जी रूम में आती है तो उस वक्त बढ़ती है, और जब वो 35 मिनट के जब वापस क्लास में आते हैं ना, तो उनकी बॉडी, फिजिकल बॉडी, उनका मेंटल स्ट्रेन ग्राउंड पे ही होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते। आप आपके घर पे आप सोचिए, आप कोई बच्चे को बाहर खेलने जाओ, आधे घंटे में वापस आएगा? वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जो खुशी, उसका जो खेलने का लगन है वो कंप्लीट नहीं होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वो सब पीटी के पीरियड्स निकाल के सैटरडे में डाले हैं। दूसरी एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हमारी जो एरिया है, बाहर का तो मुझे नहीं मालूम, जो जिसे आप माहौल कहते हैं, ये सोच सबसे पहले निकालिए कि जो स्कूल में पीटी पीरियड होता है वो बच्चों के लिए ऐसे ही टाइम पास है। ये टाइम पास नहीं है। आपको बताती हूँ कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, हर इंसान, इवन एडल्ट हो, सीनियर सिटीजन हो या बच्चा हो, स्पोर्ट कंपलसरी है। आई एम नॉट टेलिंग लेडीज के गो एंड प्ले द क्रिकेट। मेरा बोलने का मतलब है स्पोर्ट्स अपने जिस्म में ना सारी बीमारियों को दूर करता है। सबसे पहले जहनी तौर पे एक्टिव करता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नशे से दूर करता है बच्चों को। ये हमेशा याद रखिए, स्पोर्ट्स नशे से दूर करता है, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेन, ऐसी डेवलपमेंट होती है बॉडी में स्पोर्ट्स से जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमने स्पोर्ट्स, और इंडिया में भी अभी लॉ पास हुआ है कि स्पोर्ट्स को हर स्कूल में कंपलसरी किया जाए। तो हमने उस स्पोर्ट्स को निकाल के सैटरडे में डाला हुआ है, जिसमें हमने 2 आवर्स रखे हुए स्पोर्ट्स के लिए। इधर हमने अभी कराटे ऐड किए हैं, फुटबॉल ऐड किए हैं, क्रिकेट ऐड किए हैं। हमने जितने स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ है जो आपको ग्रुप्स पे अभी मिली होगी, सब उसमें ऐड किया हुआ है, ताकि बच्चों को कंप्लीटली एक्टिव होने का मौका मिले। दैट इज़ फॉर सैटरडे। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिव। हमने क्या किया है, अभी एग्जाम्पल गौर कीजिए इधर मेरी बात को ध्यान से। मंडे टू थर्सडे जो हमारा सिलेबस होता है, तो उसी सिलेबस से निकाल के हमने जीके, जनरल नॉलेज और क्विज को सैटरडे में किया है। आप समझ रहे हैं, यानी बच्चों की लर्निंग उसी में से होके सैटरडे में ग्रुप बच्चों की उसमें लर्निंग हो रही है,
जिसमें बाहर के भी क्वेश्चन, इससे बच्चों का IQ लेवल शार्प होता है, याद रखिए आप। इसका मतलब ये है कि बच्चों का एजुकेशन भी हो रहा है मंडे टू थर्सडे, और सैटरडे में सिर्फ एक्टिविटी नहीं हो रही है, बच्चों का रिवीजन होता है जो क्लास में है। इसको हमने इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। आप खुद पेरेंट्स बताइए, प्लीज रेज योर हैंड, आप मुझे सच बताइए, 16 जून से आज 11 जुलाई है, क्या आपके अंदर बच्चों में इंप्रूवमेंट नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? 100% देखा है, क्योंकि ये आएगा, ये हमारा बिगिनिंग है। आप देखो हम किस तरीके से बच्चों में बच्चों को फैसिलिटीज देते हैं, उनका IQ लेवल स्टैंडर्ड हाई करते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन वही है। दूसरी चीज, हमने मंथली टेस्ट निकाले हैं, जिसमें हमने एक फॉर्म बनाया है, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें होता है बच्चों का परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस पे हर महीने बच्चों का क्लास टेस्ट होगा, और उस क्लास टेस्ट के बेस पे बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। देखो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है कि खाली यूनिट टेस्ट दो, फर्स्ट टर्म दो, फाइनल एग्जाम तो हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है बच्चों की एवरीडे क्लास की स्किल्स किस तरह से डेवलप हो रही है, वो हर बच्चे का ध्यान रखने के लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, जिसमें जो बच्चे को एवरीडे हर टीचर एक टास्क देगी क्लास में, और वो टास्क आपको बोर्ड पे लिखाया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इंग्लिश का या उर्दू का कोई सब्जेक्ट लेसन है, इंडिया, भारत, तो वो भारत के बारे में जो टास्क दिया जाएगा कि भारत का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो वो जो हेडिंग्स है वो बच्चों को बोर्ड पे लिखी जाएगी, जो बच्चे अपने कैलेंडर में लिखेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, एवरी डे आपका फर्ज है कि आप बच्चों के कैलेंडर चेक कीजिए, क्योंकि हम कैलेंडर का यूज बच्चों के टास्क जो क्लास में होता है उसको वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो आपका ये फर्ज है कि आप बच्चों का कैलेंडर चेक कीजिए, जिससे आपको आपका रिपोर्ट मिलेगा कि आपके बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है डेली बेसिस का। और एंड ऑफ द मंथ जो बच्चा या बच्ची बेस्ट परफॉर्म करेगी उसको स्टार ऑफ द मंथ का बैच बनाया जाएगा 1 महीने के लिए। और वो इतना ही नहीं, उसका फोटो यहाँ पे असेंबली में लगाया जाएगा और उसको फेलिसिटेट किया जाएगा। आप सोचिए बच्चों पे कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बेस्ट हो गया हूँ, मैं बेस्ट हो गई क्लास में। और ये एक बच्चे के लिए नहीं, एक बच्चा होगा, दूसरे बच्चों में उसका शऊर पैदा होगा। यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर छोटी छोटी बच्चों की बात पे ध्यान दिया है, आप गौर कीजिए। इतना ही नहीं, इसके बाद टीचर्स की बारी आती है। टीचर्स का भी परफॉर्मेंस चेक होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर जो पढ़ाए, टीचर्स का भी एवरी 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जिसका फॉर्म है। इसमें टीचर्स की डेली बेसिस की पूरी न्यूचुरो फॉर्म में आ जाएगी। इसके लिए हमने कमिटीज बनाई हुई है, हर ब्रांचेस में हमने कमिटीज बनाई है टीचर्स की, जिसमें है एकेडमिक कमेटी, स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन कमेटी, और थर्ड है कल्चरल कमेटी, जिसको अलग अलग काम सौंपे गए हैं। स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन में आता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों के कपड़े, बच्चों का अटेंडेंस, एवरीथिंग, बिहेवियर, हर बच्चे का बिहेवियर सब डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स कमेटी के हवाले किया गया है, और वो डेली कर रहे हैं। आपको एंड ऑफ द जुलाई पता चलेगा। कल्चरल, जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमने डिवाइड की टीचर्स को, उनका रोल रहेगा। और हमने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जितने भी इवेंट्स और एक्टिविटीज स्कूल में होंगे वो सिर्फ टीचर्स नहीं करेंगे, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होगा। मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि हर बच्चे की आइडियाज तुम लेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शार्प है और हमें उनसे आइडियाज जो मिलते हैं ना, वो हमसे भी ज़्यादा अक्लमंद है। तो उससे बच्चों का IQ लेवल शार्प होता है। वो आइडियाज जो देंगे ना, वही हम इम्प्लीमेंट हमारे स्कूल में करेंगे। आप समझ रहे हैं? उसके बाद हमने मास PT स्टार्ट कर दी है, गर्ल्स और बॉयज, हर चीज स्टार्ट हो गई है हमारे स्कूल में। इसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ द मंथ में पता चलेगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ। इसके अलावा टीचर्स के परफॉर्मेंस के अलावा एंड ऑफ द ईयर जिस बच्चे का बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको सिर्फ फेलिसिटेट नहीं किया जाएगा, उसको बेहतरीन सरप्राइज अवार्ड से नवाजा जाएगा।
ऐसे तो बहुत बहुत मुद्दे हैं जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, जो हमने यहाँ पे नए नए फैसिलिटीज़ ईजाद किए हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेस्ट एजुकेशन ही नहीं है, उनकी लाइफ डेवलपमेंट, लाइफ के लिए सोच रही हूँ मैं, आगे की लाइफ की है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है पता है, आप लोग क्या करते हैं, बच्चों के सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के जो मार्क्स रहते हैं ना उस पर ध्यान देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को लेक्चर्स दे रहे, मोटिवेट लेक्चर्स दे रही हूँ मैं। और मैं जो आज पीटीए मीटिंग के बाद जो लेक्चर लाइफ कोच देने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स, हर कम्युनिटी मेंबर सुने, इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में पड़ेगा इंशाल्लाह, आज ज़रूर पड़ेगा। तो ये हमारी कोशिश है। अब आते हैं हम फीस पे, जैसे सर ने बताया। ये है रिपोर्ट्स कार्ड, सिर्फ ये बोरली ब्रांच की बात कर रही हूँ। कितने हो सकते पता है आपको? मोर देन 100 है। ये किसके रिपोर्ट्स कार्ड है? जो अगले क्लास में प्रमोट हो चुके पढ़ रहे हैं, बट क्यों ना पेरेंट्स को फिक्र है कि हमारे रिपोर्ट्स कार्ड ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ये क्यों यहाँ पड़े हुए हैं? क्योंकि आपने फीस पे नहीं किया हुआ है। आपको पता है, मेरा एक पेरेंट्स से क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ ग्रेट अर्नर आर इन द एंड हैविंग जॉब इन गल्फ? आप में से जितने कमाने वाले, जॉब करने वाले गल्फ में कितने? प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जो कमाने वाले हो गल्फ में कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड। जॉब करते हैं यहाँ पे कितने हैं? सबके ही है ना। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपकी अगर 2 महीने की सैलरी या 1 महीने की सैलरी वो ना भेजे तब क्या करते? नहीं, मुझे जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि ये खामोश नहीं पीटीए मीटिंग, इसके लिए क्या करते आप? आपको प्रॉब्लम होता है, टेंशन आता है कि हम क्या करें, 2 महीने की सैलरी नहीं आई है, कैसे गुजारा होगा, राइट? टेंशन आता है ना। तो ये प्राइवेट स्कूल है, टीचर्स की सैलरी कहाँ से आती है? आपसे आती है, क्योंकि आप फीस टाइम पे नहीं भरते। आपकी सैलरी से ही उनकी फीस होती है, सॉरी आपकी फीस से उनकी सैलरी होती है। कितने लोग क्वेश्चन करते हैं ना, टाइम पे उनरे स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाती, इसकी वजह भी आप ही है। आपको पता है ये जो रिपोर्ट कार्ड है इनकी कितनी पेंडिंग फीस है? इमेजिन कर सकते हैं आप, सिर्फ ये रिपोर्ट कार्ड 85 है, जिसमें नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की रिपोर्ट्स कार्ड है। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी की, लेकिन इसकी जो फीस है वो है 13,83,160 रुपये। ये सिर्फ 85 स्टूडेंट की फीस है। तो आप इमेजिन कीजिए, देखो सिर्फ 15 से 20% पेरेंट्स है ना, आई रियली अप्रिशिएट कि वो टाइम टू टाइम फीस पे करते हैं। बाकी पेरेंट्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। एवरी मंथ हर टीचर पेरेंट्स को फोन करता है, या तो एरोगेंट से जवाब देते हैं या तो फोन ही नहीं उठाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? ये आप ही की स्कूल है, आप ही के बच्चे हैं, इसीलिए अब हमने रूल्स बनाए हैं। देखो मैं उस दिन आई थी इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे स्कूल में, मैंने रिपोर्ट्स कार्ड निकाले, तो मैं 2 क्लासेस में सिर्फ गई, एक 10th स्टैंडर्ड में गई और एक 11th स्टैंडर्ड साइज में। बिलीव मी, मैंने खाली रिपोर्ट्स कार्ड ले जाए वहाँ पे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत फिक्र करती हूँ बच्चों की ब्रेन और हार्ट के लिए। मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे बच्चों की फिक्र है। मैंने वहाँ पे जब खाली बोला हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट पेड, वो बच्चों के जो चेहरे थे ना, आई स्वेयर का के बोलती मुझे अंदर तकलीफ होने लगी, सिर्फ आपकी वजह से। तो आप आपकी वजह से बच्चों को नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मंथली पे करो ना, तो इतना बर्डन जमा ही नहीं होगा ना। आप आपके ऊपर ये लागू क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला भी आपको देख रहा है कि आप तालीम के लिए, और ऐसा नहीं है, सच बता रही हूँ कि ये कोई 21 घराने के हैं, माशाल्लाह अच्छे घराने के हैं ये, ऐसा नहीं है कि गरीब है क्या है, वो तो ज़कात वाले अलग बने हुए हैं रिकॉर्ड। आप अच्छे खासे घर के, आप तालीम के लिए ऐसा करते हैं, इल्म के लिए ऐसा करते हैं बच्चों को। आपका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए जितना आप स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए 15th
ऑफ अगस्त 15 ऑफ अगस्त आपको डेट दी जाती है। प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी पेंडिंग फीस पे कीजिए, क्योंकि आपकी फीस से ही स्कूल के एक्सपेंसेस, स्कूल टीचर्स की सैलरी, सारा कुछ जो होता है ना वो आपकी फीस से होता है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है, इसके भी कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, आपको फॉलो करने होंगे। आप कोई और प्राइवेट स्कूल में जाओ, अच्छा 12 से निकलते या 10 से निकलते आप बॉम्बे जाते, पूना जाते, आपके पास रेंटेड फ्लैट देने के लिए पैसे हैं, आपको स्कूल में हजारों लाखों रुपए देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मंथली फीस यहाँ देने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? और फिर आप बोलते हैं टीचर्स अच्छे चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए। वी आर गिविंग यू मोर देन 100%, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट व्हाई यू आर नॉट कोऑपरेटिंग। दिस इज योर जॉब, आपका सरमाया है जिससे स्कूल चलता है, बिकॉज वी आर प्राइवेट। सो 15 ऑफ अगस्त इंशाल्लाह आपके लिए ड्यू डेट है कि आप आपका पेंडिंग अमाउंट पे कीजिए। प्लीज कोई एक्सक्यूजेस मत लाए जिसमें ना सर है ना हाथ है ना बोलते ना कुछ है। प्लीज आप आपके अंदर थोड़ा सा फिक्र लाइए बच्चों के लिए। और अगर आप 15 अगस्त तक बच्चे बोलते छोड़ जाने दे, तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी हैव टू गो टू लीगली, हमको लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि अमाउंट 2000 4000 की नहीं है, एक की अमाउंट 1.25 लाख, किसकी 1.5 लाख, किसकी 80,000, किसकी 90,000। क्या है ये? यानी आप पूरे साल में फीस ही नहीं पे करते। और आपने ने हमारे प्रिंसिपल को और ये मैनेजमेंट को, सच में बता रही हूँ कि आपके ऊपर कोई जबरन उन्होंने कुछ बदतमीजी भी नहीं की, ना फोर्स किया, रिस्पेक्टिवली हमेशा कहा है कि पे करो पे करो पे करो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आप दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना, आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं है आपके बच्चों को। प्राइवेट स्कूल का ये रूल होता है, फीस पे करो तब अंदर लाओ। हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, मैं क्या ज़मीर क्या, जो मेरे हस्बैंड हैं, कसम से बता रही हूँ, उनकी इंटरनल चीज़ को समझते हैं। हमेशा कहते हैं करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि कोऑपरेट करें, बिकॉज वी आर गिविंग यू 100%। तो आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल मेरी कि आप प्लीज़ टाइम पे फीस पे कीजिए, ताकि हम आगे और आपको बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। मैं ट्रस्टी हूँ, जबकि PTA मीटिंग है, ये तो काम आरिफ सर का, जिन्होंने हमेशा बेहतरीन तरीके से संभाला है, लेकिन मैं आज यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि क्या होता है पता है, हमारे जो माशरा है ना, यहाँ पे तालीम है लेकिन वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आप बोलते हैं ना माहौल खराब है, माहौल खराब नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग, माहौल खराब नहीं होता है, सोच खराब होती है। आप इंडिविजुअली सोच अच्छी कीजिए, माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये अपने हाथ में है। सो आई अर्ज ईच ऑफ एवरी पेरेंट्स, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, फीस टाइम पे कीजिए, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो। बिलीव मी, वो टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है वो 4 दिन का, उनको फर्स्ट डे से क्या क्या काम हम करवा रहे हैं ना, वो आपके बच्चों में उसका डेवलपमेंट होगा ना, तब पता चलेगा। और ये सिर्फ इस ब्रांच के लिए नहीं, मैं हर ब्रांच के लिए बोलती हूँ। सिर्फ हमारी राजपुरी ब्रांच ऐसी है, बिलीव मी, और मुझे फख्र से बोलना पड़ता है कि वहाँ के पेरेंट्स 1 रुपया भी पेंडिंग नहीं रखते, 1 रुपया। बिलीव मी कि वहाँ पे बच्चे नहीं, वहाँ पे भी 400 से ज़्यादा बच्चे, वो क्या कश्मीर में नहीं है, इधर ही है, वो भी आप ही की तरह गल्फ में रहते हैं, आप ही की तरह फैमिलीज है, क्योंकि उनको एजुकेशन की वैल्यू फिक्र है, आपको नहीं है। और आप इस चीज़ की वजह से आपके बच्चों को पीछे ला रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैं आगे आपको अभी समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो आई अर्ज एंड रिक्वेस्ट ईच ऑफ एवरी पेरेंट, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम बहुत कुछ ला रहे हैं इंशाल्लाह, जिसका डेमो एक्टिविटीज़ और जिसका डेमो आप इंशाल्लाह 15 अगस्त को देखेंगे हमारे स्कूल में। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब पेरेंट्स को, आप ज्वाइन हो जाइए 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए, और हमारे बच्चों का से परफॉर्मेंस देखिए। ये तो शुरुआत है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हम बच्चों को जो स्पोर्ट्स के लिए जर्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को एक खुशी, लगन, इंटरेस्ट, बट स्पोर्ट्स की नहीं है, माइंड डेवलपमेंट की है, ये सोच की बात है।
अगर मैं अकेली इतना सोच करके आपको इतना गैदर कर सकती हूँ, आप सोचिए कि आप सब एक साथ होने के कम्युनिटी क्या कर सकती है। वी ऑल आर वन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वी ऑल आर वन। और आपको ये बात मालूम भी नहीं है कि इस स्कूल के पीछे कुछ बातें ऐसी होती है कि जो चलाने के लिए है ना, एक हाथ होता है जो चेहरा सामने नहीं आता। ऐसे बहुत से हैं, जिसमें एक नाम रिहाना मैडम का भी है। जो औरत आज भी, सच बता रही हूँ, आज भी जो आपके बच्चों के लिए सोच रही है, जो कर रही है, शायद ही कोई लीडर करता होगा। जबकि उनका यहाँ पे कोई ये है, लेकिन शी इज डूइंग नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन। ये सोच की बात होती है। सो आई और ईच ऑफ एवरी पेरेंट्स, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। इंशाल्लाह वी आर टेकिंग योर ऑल एजुकेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह, और आपके बच्चे वो बनेंगे जो वाकई आप देखना चाहते हैं। और हमारी कोशिश नहीं, हम 100% ये कोशिश इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आपके बच्चों को सिर्फ एजुकेशन न मिले, आपके बच्चों को बेस्ट मकसद हो के ऐसी मकाम पे पाए। जैसे हमारे यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ के गए, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ सुना रही हूँ। आबिद बड़े जियोलॉजिस्ट, उमेर बड़े नेवी ऑफिसर, मास सरकोट कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्किंग इन कैनेडा, ऐमन डावरे एरोनॉटिकल इंजीनियर, माजिन वरवंडे is in Navy officer, Affan Ukai, aeronautical engineer, Umar Ghansar, government of Jammu and Kashmir, Imran Mansoori, precious stone business, Ulfat Pardesi, MBBS, Nauf Unre, MBBS, Mohammad Tawhid Riyaz Ahmad Maniyar, MBBS, Tehreen Rajpuri, psychologist, फरहद बलदेव डेंटिस्ट, जैबा नाड़कर डेंटिस्ट, अशरफ कालोके डेंटिस्ट, दानियाल भगवान डेंटिस्ट, अक्सर राउत डेंटिस्ट, दिशान दलवी एमबीबीएस, इमरान लोने एमबीबीएस, यूसुफ हसवारे इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर, उसामा नाइक इंजीनियर, हसीब बिया कंप्यूटर इंजीनियर, उज़मा बड़े फार्मासिस्ट, मंतशा तके फार्मासिस्ट, रुखसार लोगडे फार्मासिस्ट, साद लोगडे मैकेनिकल इंजीनियर, तनवीर लोगडे सिविल इंजीनियर, ताहिया इरफान हसवारे सिविल इंजीनियर, मुइजा इस्माइल प्रकार परसुइंग इन एमबीबीएस इन जॉर्जिया, सुमैया फकजी परसुइंग एमबीबीएस इन जॉर्जिया। माशाल्लाह, ये तो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट है जो AR उनरे से पढ़ के आज बड़ा मकाम हासिल किए। मैं चाहती हूँ प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये तो सिर्फ एक पेज है, ऐसे तो 50 पेजेस है जो शुरुआत से आज तक बने। कहाँ से बने? डॉक्टर AR उनरे से ही बन के गए हैं। तो आप सोचिए, उस वक्त तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, उतना मतलब इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आप को यहाँ पहुँचाया। तो आज क्या है हमारे पास? वी हैव एवरीथिंग, हर चीज़ है, सिर्फ कराने आना चाहिए। तो देखो आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते, और वो हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप पुणे, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली जाके जो सीखते हैं ना, वो सब चीज़ें इधर आई है। और सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, वर्कआउट हमने फर्स्ट डे से किया हुआ है। आपको मालूम है ये टीचर्स क्या बोलते थे आपके कुछ लोग कि बोर्डली टीचर अच्छे नहीं है, उनके स्कूल के टीचर कुछ आता नहीं है। दे आर एक्सेलेंट, आई एम टेलिंग यू दे आर एक्सेलेंट, बिकॉज मैंने खुद एक एक टीचर्स को परखा है। अगर ये अच्छे नहीं है तो दूसरे स्कूल के लोग फोन क्यों करते हैं और बुलाते हैं टीचर्स को कि हमारे स्कूल में ज्वाइन हो जाओ? क्यों बुलाते हैं उनके स्कूल के टीचर्स को कि प्लीज आ जाओ, हम आपको वेलकम करते, वहां से छोड़ो। लेकिन आफरीन है टीचर्स को जिन्होंने कभी बोर्डली स्कूल छोड़ा नहीं, उनके स्कूल छोड़ा नहीं। वजह क्या? क्योंकि उनको मालूम है जो चीज़ यहाँ मिलेंगी दूसरे स्कूल्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। So I really felicitated our teachers जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेहनत करते हैं और ये कोशिश में हैं। They are highly educated,
सब हाईली एजुकेटेड है, सिर्फ ग्रूमिंग की कमी थी। एक होता है ना, एक मेंटर की कमी थी, जो हम आ गए और इंशाल्लाह हम उनको लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दिस इज ऑल फॉर योर पेरेंट्स टुडे। PTA मीटिंग, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और जिसमें आपको कहा गया है कि आप ग्रुप बनाइए। पहले ऐसा था कि आपके यहाँ पे ग्रुप्स में कुछ शायद कोई कमेटी है जो ग्रुप्स में उसमें कोई लीडर होता था जो आपका पैगाम स्कूल तक पहुंचाता था। अब ऐसा नहीं है, अब मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट ग्रुप रखा हुआ है जिसमें मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। आपको जो भी शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप वो PTA ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। आपको लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, आप वॉइस नोट भेजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, आपको उसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ ट्रांसपेरेंसी रहे हमारे और आपके बीच। हम खुल के आईने की तरह हर चीज़ आपके सामने रख रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में भी और स्कूल के बारे में भी और एजुकेशन के करिकुलम के बारे में भी। तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसी तरह का डेडिकेशन हमें दें। इंशाल्लाह अभी PTA मीटिंग के बाद जो मैं सेशन लेने वाली हूँ उससे आप में बहुत सा फ़र्क आएगा। मुझे तो उम्मीद है, ये मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा एक ज़र्रा बन के आई हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में और आपके बच्चों में रोशनी की एक चिंगारी झलके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। विद इन 5 minutes वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। थैंक यू सो मच। लगाता हूँ। Now on agenda we have creating the executive PTA member group। ये तो एनुअल AGM है जिसमें हर पेरेंट शामिल होंगे। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी हर साल की तरह, जिसमें हर क्लास से एक पेरेंट रहेगा और इक्वल अमाउंट ऑफ टीचर्स रहेंगे। दे विल मीट वंस इन 3 months। तो जैसे हमें 2 डिवीजन है तो 2 डिवीजन्स में से कोई एक पेरेंट अपना नाम दे और उनका एक ग्रुप बनेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव PTA मेंबर ग्रुप। सो आई विल टेक डाउन फ्रॉम नर्सरी के एक पेरेंट जिसका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, who would like to be an executive PTA member, who would like to become। आपका नाम? जूनियर KG, जूनियर KG। यस सर, नाम ले लीजिए। जूनियर KG। सीनियर KG, एक ऐसे पेरेंट जिसका बच्चा सीनियर KG में पढ़ता हो। सीनियर KG क्या सर? जो नाम दे रहे वो 2 मिनट के लिए खड़े ही रहिए ताकि आपका नाम लिख सके, आपका व्हाट्सएप नंबर लिख सके। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऑलराइट विल टेक 2। चलो थर्ड स्टैंडर्ड, ओके। फोर्थ स्टैंडर्ड, okay। Fifth standard, okay। Sixth standard, 7th standard, 8th standard, 9th standard। Now we'll have 2 from 10th standard, 10th A, 10th B, 11th science, 11th commerce,
science and 12 commerce. I'll make this simple. जो लोग खड़े हैं उनका नाम और क्लास लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए. माय नंबर इज 808-702544. 808-702544. एट 702544. So we'll have equal number of teachers, equal number of parents. Now the principal will be the president of the group. Vice president will be from the parents. General secretary will be one from the teachers who will maintain the minutes book and convey you the messages. So I'll Katkar sir, Manoj Katkar sir. He's not there. Manoj Katkar sir. Yeah, you will be the general secretary of PTA. Okay. So that's the executive committee of the Parents Teachers Association Executive Committee, which will inshallah meet once in 3 months. Now the second thing, those students whose children are in 10th standard and 12th standard, जो वालिदैन जिनके बच्चे 11th में 12th में और 10th में हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस भरना पड़ती है. आईसीएसई के एग्जामिनेशन टोटल एग्जामिनेशन फीस है 4,430 and 12th standard it is 1,100 and something. So that 10th standard has to pay it within 15 days. Assalamu rahmatullahi barakatuh. We have our chairperson over here. So that fees has to be paid on time. We'll write in the calendars and we'll see that you have to pay the fees on time. Jazakallah khair. I will pass the mic to our chairperson.